Now today we will start with the word cross. जेनेटिक्स में एक शब्द है क्रॉस. What is cross? Cross is nothing. It is the breeding experiment. The breeding experiment is called cross. Now, what is breeding experiment? In breeding experiment, as Mendel have done, two selected parents, they were taken by the Mendel. One parent is taken to be male and other parent it will be taken as female parent. एक पेरेंट को मेल पेरेंट और दूसरे को फीमेल पेरेंट कहते हैं. Mendel, as I have earlier discussed, Mendel had made the pea plants male by the process of bagging and female plant by the process of emasculation, that is the removal of stem. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. फिर then he dust the pollen grains from, क्योंकि मेल के अंदर क्या किया था, इनके अंदर था मेल ग्रेन, pollen grains, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. These pollen grain they were dusted over the female carpel or pistil, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. We have studied in the angiosperms that carpel is the female reproductive part, and in stamen the anther is present, and inside the anther the pollen grains are present. These pollen grain they were dusted over the, this is the carpel structure having stigma, style and ovary. Inside ovary there is present ovule, पहले भी हम कर चुके हैं. Mendel he had dusted these pollen grains. So these are the pollen grain. They were dusted over the carpet. मैं कलर से चेंज कर देता हूं. They were dusted over this. Then the pollen grain will germinate over carpel stigma, and they form a pollen tube which reach up to ovule. In future, this ovary will become, the mature ovary is called fruit, while the matured or ripened ovule is called seed. Pollen tube will reach there, and it contains two nucleus. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. और you have studied the process of double fertilization also. So here one of the nucleus will join with the egg. Here is a egg, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं वो egg है, और जो मैंने येलो कलर से बनाया, this is the nucleus of the pollen grain, the male structure. They will join and form the zygote, and ultimately this zygote will develop into embryo, and embryo जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा. Then these seeds it will result in the formation of seed. ये पढ़ा हमने देखा कि pollen grain को मेंडल ने डस्टिंग की थी किसके ऊपर, कार्पेल स्टिग्मा के ऊपर. फिर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और फिर सीड बन गया. सीड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ these parents. When they are grown in fields, then they will form first filial generation. मैंने टर्मिनोलॉजी में आपसे बात की थी और मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ ग्रीक वर्ड
which is filial or philus. It means child. यहां पे offspring और child को filial verb FILIAL यूज किया जाता है. So the first generation will be there. Okay. Then Mendel, he crossed or self-crossed them, the members of the F1, when they flower. This is the F1 generation. F1 mean first filial generation. बच्चों की पहली पीढ़ी. जब मेंडल ने इन्हें सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो जब मेंडल ने F1 को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, बोलने का क्या मतलब है कि आपस में ऐसे क्रॉस करवाया, मतलब ब्रीड करवाया. तो अब आप समझ रहे हैं कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज नथिंग, इट इज समथिंग टू इनिशिएट, टू हैव एन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स विच आर कॉल्ड पेरेंट्स. पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ही ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ऐसे ही F1 के साथ F1 को क्रॉस करवाया गया. जो सीड्स आए, जब उन्हें फील्ड्स में लगाया गया, द जनरेशन इज F2 जनरेशन और द फिलियल जनरेशन नंबर 2. तो दिस इज द क्रॉस. सो क्रॉस इज नथिंग, इट इज अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं. मेंडल, when he was working in the period of 1856 to 1863, when he was working, he took the pea plant. Starting from the 34 characters, he reduced the character to 22, and ultimately he selected only 7 characters with contrasting traits to study. मैंने बताया था आपको. और उन्होंने किया क्या था कि एक बार में एक कैरेक्टर को पढ़ते थे. पहले यही किया. ऐसे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिनमें एक ही कैरेक्टर को एक बार में पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, उन्हें कैसी क्रॉसेस कहेंगे? उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे. सो मैं आज आपके साथ जो यहां पे डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है monohybrid cross. See, I am just representing the work of Mendel here. So, the breeding experiment, because cross is a breeding experiment, which deals with study of single character at a time. अभी एग्जांपल दूंगा आपको. कैरेक्टर एट अ टाइम. एक समय में जब एक ही गुण की स्टडी की जाए, एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाए, तो वो जो क्रॉस होता है, वो जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. Let's have an example of cross. Mendel has crossed pea plant pure for 2 traits of stem height. Stem height is one of the characters taken by the Mendel at that time. तो मेंडल ने क्या किया? किसमें ब्रीडिंग करवाई थी मैं आपको बता रहा हूं. Mendel has crossed प्योर टॉल प्लांट. प्योर मैंने कहा था आपको, होमोजाइगस. प्योर टॉल प्लांट having genotype TT and pure dwarf plant having genotype small t and the character is stem height. Character कौन सा था बेटा? Stem height. So how to execute and cross? क्या किया था मेंडल ने, वो मैं एक एक करके अब आपके सामने लिख रहा हूं.
क्रॉस कैसे बनाई जाती है वो आपको बता रहा हूं. हाउ द गैमीट्स दे गॉट फॉर्म, हाउ द क्रॉस विल बी एग्जीक्यूटेड, लेट अस सी हियर. और ये कुछ भी नहीं है, ये वो काम है जो मेंडल ने किया था. एंड रिमेंबर इट, दिस इज द क्रॉस फ्रॉम हियर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन it has been concluded by the Mendel. So let us see here, what about the cross? See, every cross have parent generation. आप क्रॉस को ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं. This is parent generation. And every parent generation, मैं थोड़ा सा और इसको साइड में ले लेता हूं. Parent generation. See, every parent generation have its own phenotype. मैंने कहा था आपको phenotype किसे कहते हैं बेटा? The manifestation of morphological, anatomical, physiological और biochemical characters. वो कैसे अपीयर होते हैं? गुण जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे दिखते हैं, वो बायोकेमिकली कैसे होते हैं, वो जो है वो फिनोटाइप कहलाता है. और द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हाट काइंड ऑफ द जीन दे कंस्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप. जीनोटाइप किसको कहा जाता है कि वो किस प्रकार के जीन के मिलने से बना है. तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट मेंडल ही क्रॉस द टू प्लांट्स, one is tall with genotype TT. मैं एक और बात आपको बता, when the Mendel was working, जब मेंडल कार्य कर रहे थे तो उनको पता ही नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि जीनोटाइप या जीन्स क्या होते हैं, क्योंकि मेंडल ने ही पहली बार ये कहा था. इसी क्रॉस को देखते हुए मेंडल को ही जीनोटाइप का पता नहीं था. अगर मैं मेंडल की ही क्रॉस आपसे करूं तो मेंडल कैसे काम कर रहे थे आप वो देखिए, उसके बाद मैं जीनोटाइप लिखता हूं. मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लेट्स लिए और उनको बैकग्राउंड के साथ क्रॉस किया, ब्रीड किया. देन ही फाउंड इन F1 generation, you will see here, the organism have phenotype. All the pea plants, organism pea plant है, all the pea plant in F1 they are having one phenotype which is tall. Okay, मैं भी genotype नहीं लिख रहा हूं. As the Mendel have studied botany as well as physics, so Mendel is well aware of the fact that during the reproduction, during the breeding, gametes they got formed. तो मेंडल ने ये देखा कि गैमीट्स तो बनते हैं, उनको पता था. तो मैं बीच में लिख रहा हूं, एवरी इंडिविजुअल विल फॉर्म गैमीट्स. मैं गैमीट्स को डबल एरो लगा के ही शो करूंगा. आपको एग्जैक्टली पता लगना चाहिए कि ये गैमीट्स यहां बन रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ गैमीट्स गॉट फॉर्म. During gametogenesis, meiosis occur, and in anaphase of meiosis, the homologous chromosome they will got segregate. मैं अभी एक बात आपसे पहले की, लेकिन इसका कंक्लूजन हम बाद में लेंगे. टॉल प्लांट है. देन मेंडल ने बोला कि देखिए पहली जनरेशन में मेंडल ने देख रहे थे और सोच भी रहे थे. ही इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड वेरी गुड analysis power he had. The conclusion power is also so great that makes him, or that made him, the father of genetics. टॉल और ड्वार्फ प्लांट, मेंडल ने देखा कि हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिए, जब उन्हें क्रॉस किया तो मेंडल ये देख रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन में, इस F1 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जब उन्होंने खेतों में वो सीड्स लगाए तो वो ये एज्यूम कर रहे थे कि दोबारा से जो पी प्लांट है, जो मटर के पौधे हैं, वे कैसे होंगे, टॉल एंड ड्वार्फ. ये दोबारा से वैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स विल अपीयर. पर
वो ये देख के हैरान थे कि ऑल आर टॉल। मेंडल को लगा शायद दो में से एक ट्रेट, एक कैरेक्टर, उसका रूप ट्रेट, दो में से एक ट्रेट जो है वो गायब हो जाती है अगली जनरेशन में, क्योंकि किसी को पता नहीं था। देन व्हाट द मेंडल डज, he does selfing or self pollination among F1 plants. तो सेल्फिंग ऑफ F1, उन्होंने सेल्फिंग ऑफ F1 किया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब था कि जो F1 है उन्हें F1 के साथ ब्रीड करवाया गया। अब मेंडल ये सोच रहे थे कि जो अगली जनरेशन आएगी, पता था कि F1 जब यहां पे ब्रीड करवाएंगे तो इनके गैमेट्स बनेंगे, ये पता था। पर मेंडल ये सोच रहे थे कि होगा क्या कि यहां पे अब सिर्फ F2 जनरेशन में, मैं आपको बता दूं जो अगली पीढ़ी आएगी उसका नाम जो है वो क्या होगा, F2 जनरेशन। He was assuming at that time that सभी के सभी पौधे टॉल होंगे। What he was very surprised, वो बिल्कुल ही सरप्राइज थे, क्योंकि उस समय उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन था उसमें दोनों तरह के प्लांट आ चुके थे। कौन से बेटा? टॉल एंड ड्वार्फ, एंड दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 मैं फिनोटिपिकली बोल रहा हूं, वो देखने में टॉल और ड्वार्फ थे और वो 3:1 रेशियो में थे। ओके, इज वेरी सरप्राइज हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि जो टॉल प्लांट है वे केवल अगली जनरेशन में टॉल ही आएंगे, क्योंकि ड्वार्फ वाला कैरेक्टर तो वो सोच रहे थे कि गायब हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है। What when we found the tall and dwarf in 3:1 ratio, he found tall and dwarf in 3:1 ratio and is very surprised. Mendel's experiment or breeding experiment, that means process, they are based on two main factors or principles. One is the principle of probability, अभी तो मैं 3:1 लिख रहा हूं, और दूसरा he used the arithmetic statistical calculations जो पहले कभी नहीं की गई थी बायोलॉजी में। he is recording all the things in paper, on paper, और उन्होंने देखा कि जो भी 7 के 7 कैरेक्टर्स हैं, जब उन्हें इस तरह से क्रॉस करवाया जाता है, सब में लगभग जो रिजल्ट्स आते हैं F2 जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में, वे 3:1 रेशियो में ही आते हैं। इसलिए मेंडल ने सोचा ऐसा क्यों हुआ। अब मैं आपको जीनोटाइप के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जो मेंडल ने प्लांट्स लिए थे, मैंने बताया था आपको हाउ द प्योर ब्रीड्स और होमोजाइगस दे विल बी फॉर्म्ड, कैसे बनाते हैं होमोजाइगस। मेंडल he also used the similar processes for the formation of homozygous. You can refer to my terminology videos. जो टर्मिनोलॉजी में मैंने वीडियोस दिए हैं आप उनको रेफर कीजिए, आपको पता लग जाएगा, वो YouTube चैनल पे अवेलेबल होंगे आपको। See, Mendel know that they are pure. It means both the homologous chromosome they have TT, या मैं जीनोटाइप किसी और कलर में लिख देता हूं, they are, the genes are TT. Similarly here, small t, small t. देखिए मेंडल ने देखा कि टॉल के पास कैपिटल टी जीन है और ड्वार्फ
के पास स्मॉल टी जीन है। ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट। ओके, सॉरी, यहां टी, यहां स्मॉल टी। अगर दोनों आपस को, मेंडल ने देखा कि अगर दोनों ही जो एलील या जीन्स हैं, अगर वे दोनों आपस को एक्सप्रेस कर जाते तो शायद एक मीडियम स्टेचर का, एक मीडियम हाइट का प्लांट बन जाता, पर ऐसा भी नहीं हुआ। इन दोनों में से केवल एक ही अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाता है। मेंडल ने एक चीज कंक्लूड किया और इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। और ये कब संभव था? अगर मान लीजिए मेंडल ने एक और चीज देखी, ऑब्जर्वेशन देखिए आप, मेंडल ने एक चीज ऑब्जर्व और किया कि इफ इट इज टी एंड टी विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस F1, अगर F1 का जीनोटाइप होमोजाइगस टॉल होता तो जो जीन ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है वो तो F1 में ही गायब हो जाता और वो F2 में ड्वार्फनेस कॉज नहीं कर पाता। अगर ये F1 में ही टी होता, कैपिटल टी होता, प्योर होता डोमिनेंट जीन के लिए, तो यहां तो ड्वार्फनेस आने का मतलब ही नहीं था। इसलिए मेंडल ने ये बात भी कंक्लूड कर ली कि देखिए F1 विल नेवर बी व्हाट homozygous, they are heterozygous for both of the alleles. One is T and other will be small t. And he gave the reason for that. इन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब मियोसिस होता है और उसका एनाफेज 1 होता है तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वे अलग अलग हो जाते हैं। दे विल गेट सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। और होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो दोनों क्रोमोसोम पे एक एक जीन होगा, इसलिए वे जीन भी अलग अलग हो जाएंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ द मियोसिस ईच जीन विल गो टू द separate gene or sorry gamete, separate gamete. So the gametes are always pure for the what genes. Similarly यहां पे भी ये भी अलग अलग हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम और स्मॉल टी बन जाएगा। यहां पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी किया। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि अगर मेल के पास देर आर 2 gametes, then the female also have the 2 gametes, then fertilization is not a sure method. Fertilization is not a sure method. ये जरूरी नहीं है कि ये जो टी गैमीट जिसमें ये वाला गैमीट है वो जरूरी नहीं है कि इस टी के साथ मिले। हो सकता है ये वाला जो टी है वो इस गैमीट के साथ मिले या इसके साथ। ऐसे ही 2 ऑप्शंस है ना, देयर आर 2 probabilities. For the second gamete, there are also 2 probabilities. Either it will unite with this, either with this. What in case of F1? Whether this T will unite with this T, whether it will unite with this T, whether this will unite with this T, small t, whether this will unite with this small t, the result remain the same and it will be tall with the t small t. क्लियर है बेटा? क्योंकि वो अलग अलग होते हैं हमें पता लग गया और वे फिर वे मिल जाते हैं और जो F1 है वो हाइब्रिड हो जाता है। अब यहां देखें आप, यहां क्या हुआ? When we do the selfing of F1, जब F1 की सेल्फिंग की तो इसका मतलब ये था कि F1 को, यहां देखिए आप, मैं यहां कर रहा हूं, when we do the selfing of F1,
इट मीन्स दैट इज F1 क्रॉस्ड विद F1 बेटा। इसका मतलब क्या चीज, T small t get crossed with T small t. Similarly, now these became the parent of this F2 generation. और इनमें भी गैमीट्स बनेंगे बेटा, and during the gamete formation meiosis occur, and during the anaphase of the meiosis both the homologous chromosome they will get segregated and they form the two alleles. कौन कौन से बोलेंगे आप? Yes, one is T and other one is small t. One is T and other one is small t. यही गैमीट्स बनेंगे क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम अब अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं आपको F2 जनरेशन में कॉम्बिनेशन कैसे बने वो दिखाता हूं। अब आप देखिए F2 जनरेशन में, या तो यहां मैं F2 जनरेशन लिख रहा हूं, in F2 generation what we found, 4 possibilities है। क्या क्या? ये F2 जनरेशन के रिजल्ट्स आपको यहां बता दूंगा। Either this T will combine with this T, T, क्या रिजल्ट होगा? T, either this T will combine with this small t, रिजल्ट T small t। ध्यान से देखिए आप बेटा, या तो ये स्मॉल t इस कैपिटल T के साथ कंबाइन कर सकता है, फर्टिलाइजेशन में मिल सकता है, so it became T small t. Either small t will be the result. It is homozygous tall, TT became tall. These two T small t, as T is the dominant gene, so they also form tall. Their expression, their manifestation is tall, while this is the only dwarf. This is the only dwarf. So what we found in the F2 generation, or what the Mendel found at that time, मेंडल ने यही देखा था कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप और फिर फिनोटिपिक रेशियो, देन जीनोटाइप अगर आप देख पा रहे हैं, और जीनोटिपिक रेशियो GR। फिनोटाइप आपके सामने है, there are two phenotype, one is tall and other one is dwarf। देख पा रहे हैं ना बेटा, दो ही फिनोटाइप हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। और कितनी रेशो में है? 1 2 3, 3 are tall and 1 is dwarf, so the monohybrid phenotypic ratio is 3:1। अगर मैं जीनोटिपिकली देखूं तो वो कितने आए? TT, T small t and small t। It came out to be 1:2:1। कितना है? 1:2:1। देखें आप, एक होमोजाइगस टॉल, दो हेटेरोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। इसके बाद आप सेकंड मीटिंग के लिए मुझे हमने ये देखा कि ये मेंडल ने किया, और मेंडल इज नॉट डूइंग ऑन ब्लैक बोर्ड और आइदर ऑन द पेपर। व्हाट इज डूइंग? इज डूइंग द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इन हिज फील्ड्स। वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। मेंडल ने देखा कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लिया तो सारे के सारे टॉल थे, और फिर जब टॉल जो F1 थे
उनको जब हमने सेल्फिंग किया, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन किया, वो कैसे करते थे? मेंडल पॉलन ग्रेन को लेते थे ब्रश के द्वारा और डिजायर्ड प्लांट के ऊपर डस्टिंग करते थे। फिर मेंडल ने देखा कि जो F2 जनरेशन आई वहां पर फिनोटिपिकली ये ठीक है कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, पर जीनोटिपिकली इट इज 1:2:1 रेशियो। जीनोटिपिकली homozygous tall is 1, heterozygous tall are 2 and homozygous dwarf is single, एक ही थे। इतना क्लियर है आपको? अब when Mendel is observing these all, he is thinking and he got some conclusion. वे कुछ निष्कर्ष कर पाए और ये निष्कर्ष बाद में, ये कंक्लूजन बाद में जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक्स हुए। पहले तो मेंडल ने देखा कि देखिए भाई, नोबडी अप टू मेंडल नोबडी नोज दैट व्हाट इज जीन, व्हाट इज फैक्टर। कुछ ऐसा भी होता है जो मां बाप से बच्चों में गुणों को ले जाता है, किसी को पता नहीं था। मेंडल ने इस क्रॉस में देखा कि पेरेंट हैव अ कैरेक्टर टॉल एंड ड्वार्फ। The F1 have one of the character which is present in their parent। और दूसरा मेंडल ये भी कंक्लूड कर पाए थे, उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किया था। उन्होंने इस मेल पेरेंट को ड्वार्फ लिया था और फीमेल पेरेंट को टॉल के कैरेक्टर के साथ लिया था। द रिजल्ट्स रिमेन सेम। इसलिए मेंडल ने एक और बात बोली कि देखिए F1 में 2 में से किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर होगा और जो कैरेक्टर यहां पे पाया जाता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर हम पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है उसको भी अगर रिवर्स कर दें, अगर हम पेरेंट्स के कैरेक्टर को भी रिवर्स कर दें तब भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर मेंडल ने बोला कि हमने देखा कि पहले तो लग रहा था कि एक कैरेक्टर गायब हो गया, लेकिन वो F2 में जाके अपीयर हो गया। सो मेंडल कंक्लूडेड दैट समथिंग इज देयर विच इज कैरिंग द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस फ्रॉम पेरेंट्स टू द F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स। हियर द कैरेक्टर ऑफ dwarfness is hidden. What this character will be carried up to the F2 as we found here, and he found here that dwarfness character will appear in 1 out of 4। क्योंकि मेंडल ने ये देखा कि टॉलनेस का जो कैरेक्टर था वो तो F1 में आ गया, वो कैरी हुआ F1 जनरेशन में। F2 में भी टॉलनेस का कैरेक्टर आया, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर गायब नहीं हुआ, वो ट्रेट गायब नहीं हुआ। दैट विल आल्सो बी कैरिड अप टू द F2। सो द मेंडल कंक्लूडेड दैट something is there which carry the character from parents to offspring, and this something he called it as factor, which is later on by the Johansen the factor is called gene। तो मेंडल ने उसको जो कैरी करता है कैरेक्टर्स को मां बाप से, उस मटेरियल को, उस समथिंग को क्या कहा? फैक्टर कहा। बाद में इसे ही जीन कहा गया जोहानसन के द्वारा। इज इट क्लियर और नॉट? दूसरा, मेंडल ने बोला कि देखिए एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होते हैं। वन कैरेक्टर है 2 ट्रेट्स, इसीलिए एक जीन के भी 2 रूप होते हैं जिन्हें आप एलील कहते हैं, वो भी जीन ही है। ऐसे जीन्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन रखते हैं और एक ही कैरेक्टर के जो 2 ट्रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हें एलील कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि इन 2 में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F1 में, क्योंकि एक तो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा था और दूसरा ड्वार्फनेस को। आउट ऑफ द 2 ओनली 1 which is T
नॉट स्मॉल टी, इट इज टी। वो बोला दो में से केवल एक ही एक्सप्रेस कर पाता है F1 में, एंड दैट विच इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द F1, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर। क्या बोला इसको? डोमिनेंट फैक्टर। इस तरह से मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर कहा गया। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर स्टेट्स दैट every character have two traits, and for every trait there are two alleles of a gene are present. पर मैं आपको एक बात बता दूं, now it is not a law, because we know, as I have discussed earlier, that multiple alleles are also there. So आज ये law नहीं है, पहले था। Then Mendel gave the law of डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां से दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आउट ऑफ द टू एलील्स ओनली वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। द जीन और फैक्टर और एलील which can express itself, it is called dominant gene and the other is called recessive gene. मेंडल को ये लगता था, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे ये लगा कि एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। पर मैंने आपसे कहा है जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है, जो मेंडल की बाद की जेनेटिक्स है, ठीक है, वो जो मेंडल के बाद की जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स ने ये डिस्कवर कर दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि दो जीन या दो एलील्स आपस में डोमिनेंट और रिसेसिव ही हो, वे एक साथ भी काम कर सकते हैं। दे मे बी कोडोमिनेंट, दे मे बी एपिस्टेटिक, दे मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, दे मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, और तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, ये बाद में। नाउ सो दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अगेन अ लॉ, क्योंकि लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मेंडल तक तो लॉ ऑफ यूनिट पेयर यहां से आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया था। नाउ इट इज नॉट लॉ, मोर ओवर दे आर नॉट लॉ। तीसरा मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, वो ये, मेंडल ने कहा कि जो मेंडल ने ये कंक्लूड कैसे किया, ऑब्जर्व किया कि जो टॉलनेस का कैरेक्टर F1 में आ रहा है, अगर यही टॉलनेस का कैरेक्टर पेरेंट की बिल्कुल सिमिलर होगा, तो जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था वो तो F2 में आना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, हमने ये कंक्लूड कर लिया क्योंकि ड्वार्फनेस के जो जीन हैं वे F1 के थ्रू F2 में गए, इसका मतलब ये कभी गायब नहीं हुए। सो इट मस्ट बी द F1 मस्ट बी हाइब्रिड ऑफ द टू एलील्स ऑफ जीन्स, दैट इज T स्मॉल t। और मेंडल ने बोला ये इसलिए होता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, सो एनाफेज के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वे सेग्रीगेट हो जाते हैं, एंड during the gamete formation the genes, okay, controlling the different traits of a character will segregate from each other and go to the respective gametes. For that reason the gametes are always pure, and this is the first law of Mendel. This is the first law of Mendel derived from मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहला लॉ था। अब देखें बेटा, आपको आता है कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हो गया, तो ये लिखना है। अब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि मैंने तो यही बताया ना कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब कहां से ड्राइव हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो explanation remains same. What the definition is there? This is law of segregation.
क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमने देखा? देखिए हमें इस पे क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है। हमने ये देखा कि जब गैमीट बनते हैं, देखो मैं वैसे डिफाइन कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे। हमने क्या देखा कि जब गैमीट्स बनते हैं तो जो जीन्स या फैक्टर्स इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं वे अलग अलग हो जाते हैं। हो गए ना अलग अलग। मैं ऐसे और बता देता हूं आपको थोड़ा सा भी इनको समझाने के लिए। ये कहा गया कि ये दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं बेटा। टी विल गॉट सेपरेट फ्रॉम दिस टी, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, और स्मॉल टी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और फिर ये रिस्पेक्टिव गैमीट्स में अलग अलग से चले जाते हैं, और इसलिए जो हर एक जो गैमीट होता है वो प्योर होता है। प्योर का मतलब है उसमें एक ही एलील होता है। क्लियर है बात? तो देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या कि जब गैमीट बनते हैं, मैंने ऐसे बोला जब गैमीट बनते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, मैं एक एक करके जो लाइन बोलता चलूंगा उसी को डेफिनेशन में बदलता चलूंगा। मैंने बोला कि जब गैमीट बनते हैं तो जो फैक्टर्स जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और जीन्स, मेंडल ने फैक्टर कहा था, जॉनसन ने जीन। मेंडल ने तो फैक्टर ही कहा था डेफिनेशन में, हम अब जीन लिखते हैं साथ में। द फैक्टर ऑफ जीन कंट्रोलिंग different traits will जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, will segregate from each other, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और फिर अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। एंड सो each gamete receives, मैं आप पिंक चौक से लिख देता हूं, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे यहां पे। each gamete receives only one factor, ठीक है, will receive only one factor, that is always pure। समझ रहे हो बात? ये है डेफिनेशन। और अब मैं इसको क्या लिख दूंगा यहां पे क्रॉस की जगह, इट इज एक्सप्लेनेशन। आप लिखेंगे द लॉ ऑफ segregation can be explained with the help of Mendel's cross between the pure tall plant and the pure dwarf plant. The character is stem height. क्लियर है बेटा? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कुछ भी नहीं है, वो ये बोलता है कि जब गैमीट बनते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन the factors or gene controlling the different traits will segregate from each other meiosis के कारण, meiosis के एनाफेज में, and each will receive only one factor that is always pure। ठीक है बेटा? So this is the law of segregation। Explanation is in the form of monohybrid cross because this law had been derived by the Mendel from this particular cross, from this aspect। हमने देखा था इस एस्पेक्ट से ड्राइव किया था। Is it clear or not? सब बच्चों को